Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, this is a channel which gives you knowledge and wisdom on various aspects. This may be how you should prepare for exam, how you should prepare for interview, what are the various facilities available in banking, insurance sector, and how salaries are moving, and all these things. So whenever we post some video on salary of different levels in banking, I observe some of the uh, you can say viewers are critical about the salary in banking. They start giving comments that in such and such organization salary is higher, in such and such organization even lower ranking officials are having higher salary and all that. And such type of discussion are important or unimportant that we will discuss in this video. As an unemployed person, what is our focus? Our focus is to get employed in the sector wherever employment is available. Naturally, everybody will go for a sector where salaries are higher, where parks are higher, where opportunity to rise is higher. So, as such, if we start comparing from one sector to another sector and getting motivation or demotivation will not serve any purpose. When a person is unemployed, his or her priority is to get employment. And how you will get the employment? If that organization offers the job to you. If a organization is having very high salary, say if we take example of RBI grade B, salary is very high, where vacancies are so less, only a handful of people can get selection as RBI grade B. And if I start comparing what is the salary of SBI PO and what is the salary of RBI grade B, it is meaningless. Why? Because SBI PO may be offered to large number of people, or IBPS PO job may be offered to large number of people. RRB PO job may be offered to large number of people. So there is an opportunity to become SBI PO, IBPS PO, or RRB PO. But as RBI grade B is offered to few people, only few people will get the job. So if we start comparing a post which is offered to very less number of people with a post that is offered to large number of people, we land up nowhere. Because as an unemployed person, my first priority should be to start earning. That earning may start at a lower level, but gradually I may rise in my life. But I keep on waiting outside and I don't go for any employment, simply waiting for an opportunity where employer will offer me very high salary, then only I will join. This is your choice. Now, say a person compares the salary of LIC with bank. There is no doubt that LIC salary is better than banks in various cadres. But in banking, you are getting the job every year. Thousands of people are getting the job, although they are offering less salary per person. I'm not defending that they should not give more salary. Yes, they should give more salary. But since they are absorbing more people, more unemployed people to their fold, so they are able to give salary lesser as compared to LIC per person. But LIC, although offering higher salary to existing employee, but not taking the fresh employees. For last 5 years, there is no recruitment in LIC for assistant or sub staff. So even if salary is higher in LIC, even if salary is higher in some other organization, if they are not offering job to you, is it useful to you or not? You are unemployed. So for you
comparison of salaries may not serve the purpose for you. The most important thing is where vacancies exist, where you can enter, and after entering that organization you can redraw your strategy from that, which jump you want to take. But unless you get a ground to jump, you will not be able to jump. So I think we should be very, very clear in our mind. Whatever information is given, that is what they are offering. If it suits you, go for it. If it does not suits you, don't go for it. Okay? Because for every one vacancy, lakh of people are aspiring. Thousands of people are aspiring. So employment is not available for asking. Employment you are getting after lot of hard work and labor and competition. So naturally, every organization will decide the wage structure depending upon their affordability and their systems. So banking is giving faster promotions. So per se, it may seems that in a particular rank salary is low, but if we see the total span of your career, sometime a banker draws much higher than their counterparts. But I am not comparing that, because comparison is not our motto. Our aim is to tell you what is happening. It may be suitable to you, it may not be suitable to you. If it is suitable to you, go for that job. If it is not suitable, if you see some other job is suitable to you, you should go for that job. That is very as simple as it is. But simply by comparing, you are not getting anything. But if you prepare for some competition where vacancies are offered, you will get job. That is our endeavor. Our endeavor is to help 1 lakh youth to get employment. And already more than 33,000 our channel subscribers are working in banking, insurance, and other sectors. So our objective is very clear: from unemployment to employment. We are not after such jobs where salary may be highest. No. If salary is higher, vacancies are not there. So that serves no purpose to unemployed youth. I think you have understood what is our objective. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. ये आपका एक बहुत ही फेवर्ड चैनल है जिसके अंदर हम नॉलेज और विजडम की बहुत वीडियोस डालते हैं. ये वीडियोस इस बात की भी होती है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है. ये वीडियो इस बात की भी होती हैं कि हमें इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है. और ये वीडियोस जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में घटनाएं घट रही होती हैं उस पर भी होती हैं. वहाँ पर क्या सैलरीज हैं, वहाँ क्या परकेसाइड्स हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते रहते हैं. और इसीलिए ये वीडियोस हम डालते हैं. और मैंने देखा है कई वीडियोस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम ऐसे कमेंट भी पढ़ते हैं जिसके अंदर हमारा डिस्कशन करना जरूरी है. जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कमेंट करता है कि सर इसके अंदर सैलरी तो कम है इस पर्टिकुलर जॉब से. यहाँ हमें ये समझना होगा कि एज ए अनएम्प्लॉयड पर्सन, अगर मैं बेरोजगार हूं तो मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, रोजगार पाना या मेरे को केवल उन जॉब्स की कंपैरिजन करते रहना कि कहां पर कितनी सैलरी है. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हम ये कहते हैं आरबीआई ग्रेड में सबसे अच्छी सैलरी है बैंकिंग सेक्टर में. अगर हम देखें, इसमें कोई डिनायल नहीं है, वहाँ फैसिलिटीज भी हाईएस्ट है. क्या वहां पर इतनी वैकेंसीज हैं कि बहुत अधिक लोगों को नौकरी मिल सके? आरबीआई ग्रेड बी में हर साल हैंडफुल वैकेंसीज होती हैं और गिने चुने लोग ही उस नौकरी को पा पाते हैं. अगर हम कहें कि आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी तो इतनी है, एसबीआई पीओ की क्यों नहीं है, आईबीपीएस पीओ की क्यों नहीं है, आरआरबी पीओ की क्यों नहीं है, तो वो एक तर्क संगत नहीं रहेगा. क्योंकि आरबीआई क्या अफोर्ड कर सकता है, वो आरबीआई की अफोर्डेबिलिटी है. एसबीआई क्या अफोर्ड कर सकता है, बैंक क्या अफोर्ड कर सकते हैं, आरआरबी क्या अफोर्ड कर सकते हैं, वो उनकी अफोर्डेबिलिटी है. मगर क्या उतनी नौकरी आरबीआई दे पा रहा है जितनी नौकरी एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ मिलकर दे पा रहे हैं? तो अगर कोई अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है, उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है जो उसको नौकरी ऑफर कर रहा है, चाहे वहां पर
लोअर अ सैलरी, जीरो सैलरी से कुछ भी सैलरी होना हमेशा महत्वपूर्ण है। ये हमें बात हमेशा समझ कर जानी है, क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपकी जीरो सैलरी है और आपको एक ऑर्गेनाइजेशन 70-75 हजार रुपए तनख्वाह दे रहा है, तो 70-75 हजार कोई कम भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए। नेचुरली अगर हम बैंकर हैं, हम हमेशा डिमांड करेंगे सैलरी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, उसकी कोई सीमा नहीं है कितनी बढ़ती जाए। मगर जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सैलरी ज्यादा ना बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों को मौका दे रहा है रोजगार का, तो वो भी एक अप्रोच है। दोनों अप्रोच में अंतर है। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो बहुत हाई सैलरी दे रही है, मगर वो लेते बहुत कम लोग हैं। कोई लेस देन 100 एक साल में लेते हैं, कोई कई कई साल लेते ही नहीं है। सैलरी अच्छी है, उसको कोई डिनायल नहीं है, पर क्या वो मुझे मिल रही है? हमें अपने ऊपर देखना है कि मुझे कहाँ पर नौकरी मिलेगी। आपको एक व्यक्ति ने लिखा कि सर LIC के सब स्टाफ की भी सैलरी हायर है इससे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हो सकता है वहाँ हायर हो, पर क्या LIC ने पिछले 5 साल से कोई असिस्टेंट या सब स्टाफ की भर्ती की? सैलरी हायर है तो किसके लिए है? जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है। आपको क्या फायदा है एज एन अनएम्प्लॉयड पर्सन? अगर वो भर्ती नहीं कर रहे, नए लोग ले नहीं रहे, तो उस सैलरी के हायर होने का आपको क्या फायदा है? आपको फायदा कब है? जो ऑर्गेनाइजेशन आपको नौकरी दे। इन्हीं 5 वर्षों के अंदर बैंकिंग सेक्टर में हजारों लोगों को नौकरी मिल गई, चाहे वो SBI जूनियर एसोसिएट था, चाहे वो IBPS क्लर्क था, चाहे RRB क्लर्क था। क्लैरिकल में हजारों की संख्या में लोगों को नौकरी मिल गई पिछले 5 साल में। LIC में लास्ट रिक्रूटमेंट 2009 में हुई असिस्टेंट की, ठीक है, 2000 सॉरी 2025 चल रहा है, आज से 2019 में 2019 में हुई लास्ट रिक्रूटमेंट। अब लगभग 6ठा साल आने को हो गया, अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो वहां सैलरी हायर भी है, तो अनएम्प्लॉयड पर्सन को क्या फायदा हुआ? उसको तो नौकरी मिली नहीं। सिर्फ उनको फायदा है जो ऑलरेडी लग गए, तो 2019 के बैच में लग गए। हमारे काफी चैनल सब्सक्राइबर हैं, अच्छी बात है, उनकी सैलरी बढ़ रही है, सबको खुशी है। पर सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी मिले लोगों को, नए लोगों को भी मौका मिले। अब सब स्टाफ का मुझे पता नहीं लास्ट भर्ती वहां कब हुई है। अगर उसकी सैलरी हायर भी है, तो अनएम्प्लॉयड यूथ को तो कोई फायदा नहीं मिला ना उसका। या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 5-6 साल से भर्ती ही नहीं कर रही है और वहां स्ट्रगल चल रही है, भर्ती करो भर्ती करो, तो आपको क्या फायदा है? मेरा ख्याल जो हमारा मकसद होना चाहिए, जो हम अनएम्प्लॉयड हैं, कहां पर नौकरी है, अगर वो नौकरी मेरी जरूरतें पूरी कर पा रही है, तो मुझे उसके लिए जाना चाहिए। अगर मुझे लगता है ये नौकरी मेरे काबिल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर नौकरी के पीछे हजारों लोग लगे हुए हैं। हर नौकरी को पाने के लिए लाखों लोग कंपटीशन दे रहे हैं। तो जिसने नौकरी देनी है उसके पास कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आप नहीं जाना चाहते ये भी आपकी मर्जी है। देखो, हर व्यक्ति एक उस चीज को चुनेगा जो उसके लिए बेहतरीन है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि बैंक वाले एक PO को सिर्फ 70-75 हजार रुपए दे रहे हैं और मेरे पास नौकरी 1 लाख की है, तो नेचुरली आप नहीं जाओगे। मगर अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां 10, 15, 20 हजार आपको मिल रहे हैं, और फिर आप कहो जी बैंक वाले 75 हजार क्यों दे रहे हैं और RBI वाले इतने क्यों दे रहे हैं, तो उस कंपैरिजन का आपके लिए तो कोई मायने नहीं रखता ना। जिसने नौकरी देनी है उसको डिसाइड करना है वो क्या टर्म्स पे आपको एम्प्लॉय करना चाहता है। हालांकि एज एन एक्स एम्प्लॉय और एज एन एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय ये चाहेगा कि उसकी तनख्वाह बढ़े। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जो लड़ता नहीं है कि तनख्वाहें बढ़ाओ। लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। 5 साल के बाद सेटलमेंट भी होते हैं, थोड़ा बहुत इंक्रीज भी होता है, पर फिर भी हम अगर अनएम्प्लॉयड हैं, ये सोच के बैठ जाएं कि इस संस्था में तो तनख्वाह कम है, उस संस्था में तनख्वाह ज्यादा है, जब उसकी वैकेंसी आएगी 5 साल बाद, 6 साल बाद, तभी मैं लड़ूंगा, तो ये आपकी चॉइस है। कितने लोग हैं वो कह रहे हैं ये नौकरी करनी तो सिर्फ LIC में करनी है, 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो ये आपकी मर्जी है। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन हायर सैलरीज दे रही है आज की डेट के अंदर, वहां पर ये देखने में आया कि वैकेंसीज भी काफी कम है।
तो ये आपको फैसला करना है। हमारा मकसद जो भी हम सैलरी का वीडियो डाल रहे हैं, सिर्फ आपको एक सूचना देना है कि आज का क्या स्टेटस है। आपको सूट करता है आप उस सेक्टर में जाएं, आपको सूट नहीं करता है, जो सेक्टर आपको सूट करता है आप जाएं। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। हम हमेशा चाहेंगे आपको रोजगार मिले, आपका कैरियर बने, हम हमेशा आपके साथ हैं। मेरे चैनल पे बहुत ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे थे, उनको और जगह नौकरी मिली, वो आज भी मेरे टच में है। कोई टीचर बन गया, कोई कहीं चला गया, कोई अच्छी बात है। हमारा एम क्या है कि मेरा जो एक दिली इच्छा है वो क्या है कि 1 लाख आदमी की मैं मदद कर दूं नौकरी पाने में। बैंकिंग में मिल जाए अच्छी बात है, इंश्योरेंस में मिल जाए अच्छी बात है, एसएससी में चला जाए अच्छी बात है, किसी और सेक्टर में चला जाए अच्छी बात है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आपको नौकरी मिलना, आपकी मनपसंद नौकरी मिलना। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं ये बेस्ट है। कोई भी दुनिया में चीज बेस्ट है ही नहीं। जो भी समझता है मैं बेस्ट हूं, उससे कोई अच्छी चीज निकल ही आएगी दुनिया में। तो कोई भी अनंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है इस संसार का। और हमारी आशाओं का, हमारी आकांक्षाओं का भी कभी अंत नहीं होना चाहिए। हमेशा ये जागृत रहनी चाहिए, तभी आदमी तरक्की कर पाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।